Hi, Shamin. How are you? Welcome to Campus to Career. Thank you for inviting me. I'm good. आपका क्या हाल है? Bilkul theek, Alhamdulillah. Okay, so let's dive right in. We'll start by an introduction. So tell us a little bit about yourself. Okay. Um, so I'm Shamin. I graduated from FAST. I did my computer science back in. I graduated in 2020. And I've been working since then. 2020, I started off as a Python developer. And I was in pure backend development, but in between, I transitioned into data roles. I worked as a data scientist also with the government think tank, and then I worked with startups in Pakistan, also like Oran, in data roles. But then after that, I transitioned back into backend engineering roles. So I've been working as currently I'm working as a backend engineer for a startup in Finland. So that is it about me. Overall, मेरा अब 6 years का experience हो गया, and it is mainly in data and backend roles. Oh, that's very interesting. So we've had lots of computer science students, background ke log, but everyone has been from a different field. Mhm. We had people that are tech recruiters, C++, Mhm. Android engineers. But I think you're the first guy that comes from a data or a backend background. So that's something that's very interesting. And I know that's Mhm. something that I want to dive deeper into. So tell us a little bit about what you do in your current role. Okay, so my current role is not much about matlab, data related because it's more towards backend engineering. But basically, we are building agentic models. Currently, we have जो हमारा product है वो basically financial analysts को AI solutions provide करता है जिसके अंदर they just put in their problems और उनको agent पूरा financial analysis कर देते हैं based on their query. But I'm working on the back end part of it. So basically मैं agent के ऊपर मतलब agent का brain model के ऊपर काम नहीं करती, but agent के जो बाकी parts होते हैं like tools build करना and agent itself build करना, उसकी functionality define करना, it uses that model, but उसकी बाकी जो functionality agent की build करनी होती है, I'm working on that. So it's a back end AI engineering role क्योंकि आपको उसके अंदर मॉडल से इंटरैक्ट कैसे करना है और मॉडल को यूज कैसे करना है फॉर द स्पेसिफिक एजेंट टू वर्क अकॉर्डिंगली, उसके अंदर काफी ज्यादा आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एआई स्किल्स की जरूरत होती है टू डू दैट. सो इट्स अ बैक एंड एआई इंजीनियर रोल. That's very interesting, back-end AI engineer role. And I think at the time that we were graduating, ये ऐसा role शायद exist नहीं करता था. I think it's transitioned, या नो. right? Yeah, yeah, I think या. that's very interesting. Okay. So before we dive deeper into this, I want to take a step back. So you mentioned that you worked as a data analyst and a data scientist. So ये हम नाम बहुत सुनते हैं कि data analyst है, data scientist है. What what are these roles and what's the difference between them? ओके सो वैसे सुनने में दोनों ऑफ कोर्स ये सेम लगते हैं, बट डेटा एनालिस्ट जो होते हैं ना, आई थिंक वो करंट और पास्ट डेटा के ऊपर दैट पर्सन कैन आंसर द क्वेश्चंस लाइक ये क्यों हुआ था. अब मतलब करंट डेटा को एनालाइज, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हुआ था, why this happened or what is happening currently. Whereas data scientist होगा ना, वो future predictions, matlab what can we do, how can we improve prediction models and using data to प्रिडिक्ट के आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए या फिर इंसाइट्स को या प्रिडिक्शन बेस्ड, उसके ऊपर डेटा साइंटिस्ट का काम वहाँ पे आता है जिसमें बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग मॉडल्स और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है. वेयर एज डेटा एनालिस्ट करंट डेटा को एनालाइज करता है जिसके अंदर मे बी दे आर यूजिंग मोर ऑफ एसक्यूएल टूल्स, डैशबोर्डिंग टूल्स, इस तरह के टूल्स वो यूज कर रहे होते हैं. So that is the main difference. Current or past data का analysis, I think data analyst, and then predicting the future and future का क्या कहते हैं के लिए using the data to predict future, वो data scientist का ज़्यादा काम होता है. Okay, that's nice. What did you enjoy more, the data analyst or data scientist? दोनों अपने तरीके से बड़े मजे के काम है. आई थिंक डेटा एनालिस्ट
के रोल में मुझे जो सबसे और आई थिंक जो एक एज जो टेक्निकल रोल्स में उस तरह नहीं होता कि आपको बिजनेस की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट रोल में अम, हर टीम से वो आ रही होती है, आपको मतलब कोई ना कोई रिक्वायरमेंट आ रही होती है, मार्केटिंग टीम से भी आ रही होगी, पेमेंट्स टीम से भी आ रही होगी, हर किसी को अपना डेटा एनालाइज करके कोई अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है. सो when you are pulling that data, तो आपको जब आप डेटा इंसाइट्स निकाल रहे होते हो तो आपको अपने यूजर की, आपको क्या कहते हैं, अपने बिजनेस का बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है कि यार मेरे बिजनेस में चल क्या रहा है, इस पूरा मतलब एंड टू एंड. टेक्नोलॉजी के रोल में आई थिंक आपको बस अपनी कोडिंग से, मतलब आपको प्रोडक्ट मैनेजर बता रहा होता है क्या करना और आप कोड कर रहे होते हो, बट इन द डेटा एनालिस्ट रोल यू कैन इजीली, अगर आपको लग रहा है ना कि मैंने ट्रांजिशन करना है किसी और उसके अंदर, लाइक इफ यू वांट टू गो इनटू बिजनेस या फिर टेक्नोलॉजी में भी अगर आप जाना चाहते हैं, तो वो ट्रांजिशन करना बड़ा इजी होता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो ऑफ डिफरेंट टीम्स, तो आप खुद आपकी अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस एक्यूमेन भी साथ बिल्ड हो रहा होता है. व्हेन यू आर पुलिंग दैट डेटा, आपको भी समझ आ रही होती है इनसाइट्स निकालते हुए कि मैं इन पे किस तरह स्ट्रेटेजी बिल्ड हो सकती है. तो ट्रांजिशनिंग इनटू एनी अदर रोल आप एक्सप्लोर करते हो और आप एंड यू रियलाइज कि आप कुछ और करना चाहते हो, तो डेटा एनालिस्ट से ट्रांजिशन करना ईजियर होता है एज कम्पेयर टू प्योर टेक्निकल रोल. Okay, that's interesting. So, Yeah. Yeah. And yeah, you asked about data science. So data science में I think data science में मुझे जो like उसके अंदर ज़रा आप टेक्निकल काम ज़्यादा कर रहे होते हो, आपकी लर्निंग ज़्यादा हो रही होती है, नॉट एवरी टाइम आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हो ज़्यादा के, क्योंकि बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स, और क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, और हर प्रॉब्लम पे सेम एल्गोरिदम नहीं लगता. सो वो जो आई थिंक लर्निंग कर्व और जो एक सेटिस्फेक्शन होती है ना ऑफ आप एक सोल्यूशन प्रेडिक्शन वो मतलब डिड्यूस करने की, वो आई थिंक डेटा साइंस में उस तरह की सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू डेटा एनालिसिस के काम से. okay, accomplished feeling आती है थोड़ी. या Okay. तो okay, so we talked about कि data analyst से किसी और role में transition करना is easier, right? Exposure आपका बढ़ जाता है. तो data analyst की job land करने के लिए what do you think are the requirements, or what maybe a fresh grad would need? आई थिंक सबसे पहले तो फ्रेश बेसिक जो बेसिक टूल्स हैं वो आने चाहिए, क्या कहते हैं, लाइक पाइथन हो गया, एंड देन यू शुड नो द टूल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर डेटा एनालिसिस सच एज पांडास, इफ पांडास लाइब्रेरी हो गई, और डेटा साइंस की भी जो जिस तरह पाइटॉर्च हो गई, इस तरह की जो लाइब्रेरीज होती हैं विच आर यूज फॉर डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस एल्गोरिदम्स, इस तरह की लाइब्रेरीज आनी चाहिए. एंड देन फर्दर अपने कोई डेटा मतलब एंड देन रिपोर्टिंग टूल्स ऑल्सो, जिस तरह डैशबोर्डिंग टूल्स इतने, देयर इज पावर बी आई, देयर इज लुकर स्टूडियो और टैब्लू, इस तरह के काफ़ी सारे टूल्स हैं, उनकी नॉलेज होनी चाहिए. एंड देन अपना कोई आई थिंक इट वुड बी ईजियर अगर कोई अपना साथ साथ कोई डेटा लेके अपना एनालिसिस छोटा सा प्रोजेक्ट हो, एंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की अंडरस्टैंडिंग हो, तो आई थिंक इट इज very easy to get into a data analysis role. And अगर start करना है तो I think जो basic fundamentals हैं उनसे start किया जाए, like Python and SQL language आनी चाहिए. Okay. अच्छा, तो AI इतनी इवॉल्व कर गई है, तो डू यू स्टिल थिंक कि डेटा एनालिस्ट का रोल रेलेवेंट रहा है आज के दौर में, या फिर डू यू थिंक AI हैज फिर ब्रिज्ड दैट गैप? AI ने अभी तक आई थिंक 100 काफी हद तक कर लिया, बट 100% आई थिंक नहीं किया, बिकॉज आई स्टिल थिंक जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है ना, वो अभी तक AI के पास मतलब उतनी अच्छी नहीं है. जो आपको जब आप प्रॉब्लम जब आप जो आपको रिक्वायरमेंट आई है किसी भी टीम से, दैट कोई भी प्रॉब्लम है, तो टू अंडरस्टैंड कि मुझे कौन सा डेटा निकालना है और कहाँ से निकालना है, और एग्जैक्टली मुझे कौन से स्टैट्स इसके ऊपर अप्लाई करने हैं टू गेट द राइट इनसाइट्स, आई थिंक वो जो
solving skill है that still is with the human, but then of course बाकी to get the relevant data, उसकी coding, उसकी क्या कहते हैं वो आपको AI उसमें बहुत help कर देती है. हाँ, so I think maybe वहाँ पे जहाँ मतलब जो डेटा एग्जैक्टली जो कोडिंग का पार्ट होगा डेटा एनालिसिस का टू पुल द इनसाइट्स, जो टेक्निकल पार्ट होगा वो एआई कर लेगी, बट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का होगा ना कि डेटा निकालना कौन सा एल्गोरिदम कौन सा लगाना है, वो वाली जो सारी अंडरस्टैंडिंग होगी वो ह्यूमन कि अगर आपके पास अच्छी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है तो वो स्टिल दैट इज स्टिल रेलिवेंट. और yeah, that is what I think. Okay. So fully replace नहीं किया, problem solving I think AI ने अभी तक replace उस तरह नहीं की जो fundamental knowledge इंसान के पास होती है. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली दैट डेटा एनालिस्ट का रोल इज सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशनिंग इनटू लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के रोल जो आजकल हैं, राइट? Yeah. या इट्स सॉर्ट ऑफ फील्स लाइक दैट. Yeah. Kind of ज़्यादातर coding jobs now are converting into prompt engineering jobs. That's very Yeah. true. That's very true. That leads me to my next question. Okay, what's the difference in your working or day-to-day engineering and day-to-day tasks when you graduated as opposed to now? Because obviously technology ने बहुत ज़्यादा shift लिया है during this time, right? Okay. अच्छा, so पहले जब टिकट असाइन होता था ना तो there was this whole plan कि अच्छा इसको इस्ता करना है, but अब जब टिकट असाइन होता है तो दिमाग में होता है कि कौन सा प्रॉम्प्ट देना है. अभी भी जो सोल्यूशन डिजाइन करने वाला प्रोसेस सेम ही है जो आप लॉजिक बिल्डिंग वाला, बट आई थिंक चेंज जो एक ड्रेस होते किस्ता करना ये आई थिंक लॉजिक बिल्डिंग इज स्टिल देयर, बट आपको फिर भी अब कोडिंग वाले पार्ट के ऊपर उसका स्ट्रेस नहीं करना पड़ता. यू जस्ट हैव टू गिव अ प्रॉम्प्ट, आपने जो लॉजिक बिल्ड कर लिया उसका प्रॉम्प्ट देके यू कैन जनरेट द कोड. बट आई थिंक जो आपको अंडरस्टैंडिंग फिर भी होनी चाहिए कि जो कोड जनरेट हुआ है वो भी क्या हुआ है. तो आई थिंक इट्स गुड कि आप लॉजिक खुद ही बिल्ड करो कि किस तरह वो करना है, सो दैट यू नो कि ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो. ये ना हो कि आप पूरे डिपेंडेंट हो और आपको पता ही ना हो कि क्या हो रहा है. उससे आपकी प्रोडक्ट मतलब आपकी कम होगी, प्रोडक्टिविटी बूस्ट से ज़्यादा आप थोड़ी आपकी वैल्यू कम होगी. बिल्कुल, एग्जैक्टली. आई थिंक एआई इज अ वेरी गुड टूल, बट आप ब्लाइंडली एक्सेप्ट ऑल नहीं कर सकते. आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है. या Yeah. यू नीड टू, बिकॉज वी हैव द कॉन्टेक्स्ट दैट दे माइट. Yeah, you should know what you are doing. कि कोड में हो क्या रहा है वो पता होना चाहिए आपको. जो आपको टिकट असाइन हुआ है वो भी पता होना चाहिए कि किस तरह क्या इसमें चल रहा है. बिल्कुल, बिल्कुल. Okay. So you also mentioned that you've worked at startups, right? So how is that experience? Or how do you think that's different from your corporate job? Startup experience overall I feel like जो there's more room for innovation और आपको autonomy थोड़ी ज़्यादा मिलती है ना startup. आप initiative ज़्यादा ले सकते हो. आपका आप easily कम्युनिकेट भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हो बिकॉज कोई इसका बहुत बड़ी हायरार्की नहीं होती. सो बट देन अगेन आप मल्टीपल हैट्स पहन सकते हो, बट देन अगेन इट्स वेरी स्ट्रेसफुल ऑल्सो कि हाई पे वो फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट होता है. आपको काफ़ी ज़्यादा काम भी कभी कभी यू हैव टू वर्क ओवर टाइम ऑल्सो, क्योंकि एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट जिसमें सारे स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी बिल्ट हैं और एक नॉर्मल तरीके से काम चल रहा है, उस तरह नहीं होता. कभी कभी आपके पास ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, कभी बिल्कुल भी नहीं होता. सो आई थिंक लर्निंग कर्व मतलब ज़्यादा बेहतर होता है स्टार्टअप्स के अंदर एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब. Okay, that's very nice. That's very nice. So let's take a step back. When you started your degree, did you always want to do a computer science degree? I always wanted to do engineering. मतलब मुझे मेडिकल वाली साइड पे नहीं जाना था, बट आई वाज कंफ्यूज कि मुझे कौन सी इंजीनियरिंग करनी है. इट्स अ वियर्ड
funny story. मुझे maths में I was good, so calculator से I was fascinated कि ये मतलब what is the science behind it कि as a kid कि ये किस तरह इतने जल्दी मतलब किस तरह इतने जल्दी आंसर कर देते um, तो आई थिंक दैट फैसिनेशन उसकी वजह से और मतलब तब मोबाइल्स कंप्यूटर्स इनको देख के दिस वाज अ न्यू टेक्नोलॉजी हमारे एज की, तो यही टीवी कंप्यूटर ये न्यू टेक्नोलॉजी थी। तो टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट वो उसकी एक फैसिनेशन थी ड्यू टू विच आई चोज कंप्यूटर साइंस। बट टू बी ऑनेस्ट मैंने मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि कंप्यूटर मतलब मैंने जिस तरह कंप्यूटर साइंस सोची हुई थी इट वाज वेरी डिफरेंट जब मैंने पहली सरसेप की क्लास ली थी। ओके, तो क्या एक्सपीरियंस था पहली सरसेप की क्लास लेके? आई थिंक जो हमें लाइक उसका कोडिंग जो कंप्यूटर की क्लासेस भी होती थी ना, अब आई थिंक करिकुलम चेंज हो गया बच्चों का, लेकिन जो हमारी कंप्यूटर की क्लासेस होती थी उसमें कहीं पे भी कोडिंग तो पढ़वाई ही नहीं जाती थी, मतलब मोस्टली बाइनरीज तक था। सो जो कोडिंग जिसका प्रॉपर लाइक मैं इतनी तब तक आई वाज सो अनअवेयर कि मुझे कोडिंग एग्जैक्टली भी नहीं पता थी कि कोडिंग किस तरह होती है। मैंने मतलब फर्स्ट ईयर में मेरा प्री इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था एफएससी में, इट वाज नॉट कंप्यूटर का बैकग्राउंड। तो इट वाज माय फर्स्ट टाइम नोइंग कि कोडिंग किस तरह की होती है, मतलब लूप्स क्या होते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो दिस ऑल वाज वेरी न्यू बिकॉज मुझे बाइंड आई थिंक मैंने कंप्यूटर जहाँ तक पढ़ी थी इट वाज जीरो वंस, बाइनरी जीरो वंस। सो this all was very new for me कि कोडिंग किस तरह की होती है। हाँ, so FSC की कंप्यूटर साइंस और यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर साइंस वाज वेरी डिफरेंट। Yeah, but FSC में I didn't take computer science. Now I took chemistry, physics, and maths. So computer science नहीं थी. So maybe I don't know. Maybe FSC में वो पढ़वाते हो coding, but coding for me was very new when मैंने university के पहले semester में मतलब वो एक नया concept था। मेरे लिए भी, to be very honest, yeah. Okay, so did you enjoy it during that time, or did you know कि आपने क्या करना है आगे? I think शुरू में ना I'll be honest, I did not enjoy it because प्रेशर बहुत ज़्यादा था। और आई थिंक जो स्कूल में आपका जो एक रूटीन चल रही होती है ना, यूनिवर्सिटी में आके बड़ा डिफरेंट सीन होता है जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया होता। और आई थिंक यूनिवर्सिटी से निकल के प्रोफेशनल लाइफ का भी यही डिफरेंस है, आप एक्सपेक्ट नहीं करते जो आप यूनिवर्सिटी में एक रूटीन चल रही होती है कि प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल डिफरेंट होती है। बिल्कुल। सो यूनिवर्सिटी का एकदम से कोडिंग लाइक आई टोल्ड यू इट वाज अ न्यू थिंग, लाइक मैंने उससे पहले कभी एक्सप्लोर भी नहीं किया था कि कोडिंग कैसी होती है। तो आई थिंक वो जो एकदम से इतना बड़ा लर्निंग कर्व था वो तब मुझे उसका बड़ा स्ट्रेस और प्रेशर फील हुआ था। तो आई डिड नॉट एंजॉय इट इफ बीइंग ऑनेस्ट। बट ओवर टाइम जब आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक आपको टीचर्स अच्छे मिल जाए ना तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट खुद ही बिल्ड होना शुरू हो जाता है। आई थिंक अच्छे टीचर्स मिल गए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर साइंस की जब प्रोजेक्ट्स किए तो रियल लाइफ एप्लीकेशन समझ आना शुरू हुई। जब एआई डेटा साइंस एआई की क्लासेस लेना शुरू की, डेटा साइंस की क्लासेस, तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर किया गया इस साइड पे इंटरेस्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी अदर थिंग्स। सो आई थिंक लेकिन नहीं, शुरू में यूनिवर्सिटी में आते साथ आई डिड नॉट एंजॉय कोडिंग बट ओवर टाइम बिल्ड हो गया इंटरेस्ट। Okay, I think that's a lot with a lot of people as well. Yeah. So, when you graduated, did you know what career path you wanted to take? Graduated, I thought मैं बहुत ज़्यादा data science और like I told you I have transitioned back into back-end engineering role. But when I initially graduated, I thought मैं बिल्कुल data science roles के अंदर ही रहूँगी and I'll never switch back और मैं इसी के अंदर. But I think I did not find the right mentorship और मुझे पाकिस्तान मतलब द कंपनीज आई वाज वर्किंग फॉर उनके पास इतना डेटा था नहीं टू मतलब बहुत ज्यादा शुरू में व्हेन यू वर्क इन स्टार्टअप द थिंग इज दैट दे जस्ट वांट टू बिल्ड द सिस्टम, उसके बाद डेटा एल्गोरिदम्स लगते हैं टू ऑप्टिमाइज देयर सोल्यूशन। हेलो सॉरी। अच्छा सो
So I think आई वॉज नॉट एंजॉइंग इट एट द टाइम. जो उस वक्त मतलब काम शायद उतना डेटा रिलेटेड मुझे मजा नहीं आया. सो आई ट्रांजिशन बैक इनटू बैक एंड इंजीनियरिंग. सो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि अभी जहाँ पे मैं होंगी, मतलब एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन मैंने नहीं सोचा था. बट ओवर आई थिंक यू एक्सप्लोर एंड ओवर टाइम यू फाइंड कि आपको किसमें मजा आता है, तो आप सेट हो जाते हो. आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ में यही होता है. आप शायद मे बी आप जाएं तो आपको ओवरऑल ही समझे मुझे टेक में ही नहीं इंटरेस्ट, मुझे बिजनेस साइड पे इंटरेस्ट है या हाँ, प्रोडक्ट साइड पे इंटरेस्ट है. बिल्कुल, बिल्कुल. सो यू मेंशन कि कोई उस वक़्त मेंटरशिप नहीं थी या लैक ऑफ गाइडेंस थी, राइट? तो अम, आप क्या एडवाइस दोगे टू फ्रेश ग्रेड्स हू also think that they really want to be go into data science or data analyst roles, right? Hmm. What is one advice that you would give them, just so that they're more prepared for the real world? या ओके. मुझे जो अपने उसके अंदर एक अर्ली करियर में लगता है ना कि मतलब और ये सिर्फ मेरा नहीं, आई थिंक ज्यादा बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि मतलब आप यू आर शाय और वट एवर, आप उतना जाके हेल्प नहीं मांगते क्योंकि यूनिवर्सिटी और इवन इन स्कूल एक इस तरह का पूरा environment बना होता है that you have teachers around, you have friends around. आपको it is easier to ask for help और मतलब आपको मिल जाती है assistance. मतलब आप क्लास में चले जाते हो, आप क्वेश्चन पूछ लेते हो, तो वो पूरा environment ही ऐसा होता है. प्रोफेशनल लाइफ में उस तक एनवायरनमेंट नहीं होता जिसकी वजह से आप रिजर्व होते हो कि यार मैं इससे पूछ लूँ तो अजीब, मैं इसको जानता तो नहीं हूँ ऐसे. तो आप वो गाइडेंस ही नहीं लेते और आप बस हिट एंड ट्राई जो कर रहे हो. तो बट आपकी जो प्रोडक्ट मतलब आपकी मेरे ख्याल में जो प्रोडक्टिविटी और स्किल्स और वो बूस्ट मतलब आपकी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बूस्ट हो जाए अगर उसको एक बंदा जिसने ऑलरेडी 9-10 years या फिर इवन 6-7 years लगाए हुए हैं करियर में, तो वो अगर आपको गाइड करने लग जाए. सो आई थिंक अगर आपको अपनी कंपनी में कभी कभी आपकी मैनेजर से नहीं बनती, आपका नहीं वो होता, आपको अगर अपनी कंपनी में नहीं, इट्स गुड टू फाइंड अ मेंटोर. आप लिंक्डइन पे देख लो, आपको किसी की लिंक्डइन पे लगता है कि कोई लोग मेंटोरशिप देते भी हैं. लाइक आई हैव सीन पीपल ऑन टॉप मेट, उनके वन ऑन वंस उन्होंने रखे होते हैं. तो आपको जो लगता है कि तो नेटवर्किंग करो और मेंटोर ढूंढो अपनी फील्ड के अंदर लगता है जिसमें आप करना चाहते हो. कोई ना कोई मेंटोर जरूर बना लो. जब आपको आफ्टर 4-5 years लगे कि अब तो मैं इससे ज्यादा बेहतर होगी, कोई नया मेंटोर ढूंढ लो. लाइक हाँ. बट ऑलवेज फाइंड कोई इस तरह का बंदा जो आपको गाइड करता रहे. वो आपका बहुत बूस्ट कर देता है. आपको आपकी मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बूस्ट हो जाती है अगर आपके पास कोई इस तरह का बंदा हो जो आपको गाइड करता रहे कि तुम आगे ये कर लो, तुम वो कोर्सेज कर लो, तुम ये कर लो. तो आई थिंक इट्स गुड टू ऑलवेज हैव अ मेंटोर. अपनी अगर कंपनी में भी काफी सीनियर लोग होते हैं जो दे आर विलिंग टू हेल्प, तो उन्हीं से मेंटरशिप मांग लो, तो इट्स गुड. I think that's really good advice because a lot of people hesitate in asking for help कि वो help करेंगे नहीं या मुश्किल होगा या या because या I think people don't know that लोग ready बैठे होते हैं help करने के लिए. मैंने जितने लोगों को मेरे personal career में हाँ भी reach out किया है, most of them have been really helpful and have always been there to guide me. So I think that's a very good advice that reach out to people that you think have more यस experience, yeah, that are better, and find mentors. And I think one thing that campus to career offers is hopefully help bridge that gap. या It's easier for यस people who are early in their career to find people that are more experienced in the same field, and they can connect and they can share their wisdom and या can share their experiences, and others can learn from that. So you were talking to me about your niece and how she was working on a project, right? And she came to you for advice. So how do you think the younger generation's approach to problem solving is different from that of us or the older generation? Younger generation, I think, I don't know about the older generation. I know about my generation. हम लोग थोड़े younger generation, I think they are more vocal.
अपने जो भी मसले हों, क्या कहते हैं, जो भी उनको अवेयरनेस भी थोड़ी ज़्यादा है, बिकॉज़ आई थिंक सोशल मीडिया का दौर है, तो उन्होंने ऑलरेडी थोड़ी-थोड़ी रिसर्च की होती है कि ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आई थिंक उनकी अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा है, वोकल थोड़े ज़्यादा हैं, तो उनके दे आर मोर क्यूरियस एज़ कंपेयर्ड टू अस, दैट इज़ व्हाट आई थिंक। और अब लेकिन आई थिंक जो आई डोंट नो इफ इट इज जस्ट माय नीस और मे बी छोटे बच्चे भी आई थिंक अभी भी वो हेजिटेट वो भी करते हैं टू आस्क क्वेश्चंस। उनको होता है कि वो भी थोड़े शाय होते हैं कि शायद मे बी, बट उनके क्वेश्चन की क्वालिटी आई थिंक दैट इज बेटर देन अस। मे बी इट इज बिकॉज दे हैव मोर अवेयरनेस, उनको ज्यादा एआई और उससे सबसे पहले जाके तो चैट जीपीटी कर लेते हैं ना कि हमने ये टूल बनाना है तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, तो दे नो द बेसिक्स। उनको पता होता है कि इस तरह करना है, उसके ऊपर फर्दर वो एडवांस थोड़े सवाल पूछते हैं एज कम्पेयर टू अस। हम जब जाते थे तो हमें इतना कुछ भी नहीं पता होता था, बेसिक सवालों से स्टार्ट करते थे। Yeah, that's very true. That's very true. Our Google searches were very different from what Yeah, आजकल के बच्चे search or talk to GPT about. yes, and yeah, and overall, एक और जो मैंने चीज़ नोट की है आजकल के बच्चों में, आई डोंट नो, अब थोड़ा-सा ना उनके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया एज़ कंपेयर। आई थिंक उनको ऊपर-ऊपर से नॉलेज होती है, बट उन्हें ज़रा ज़्यादा दे थिंक कि वी नो इट ऑल। Huh. कॉन्फिडेंस ही उनमें थोड़ा ज़्यादा हो गया एज़ Is कंपेयर that टू a good अस। thing or a bad thing? It's the confidence is a good thing as long as you are competent in that thing also. Overconfidence, I think, थोड़ी वो होती है, Problematic. is bad. Okay. Yeah. Okay. So if someone wants to enter the AI field today in a professional capacity, like you are a backend AI engineer, where should they start? Mhm. So I think सबसे पहले तो क्या वैसे तो there I would say that there are a lot of courses जो आपको फंडामेंटल से स्टार्ट करवाते हैं to get into AI. बट अगर मैं उन कोर्सेज का भी आउटलाइन बता दूं तो इट स्टार्ट्स विद यू हैव टू स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स जो भी AI के होते हैं। सबसे पहले पाइथन प्रोग्रामिंग होगी, स्टैटिस्टिक्स होगी, बेसिक machine learning concepts होंगे. So you have to start with the fundamentals and then you have to learn the core tools. जब आपने fundamentals सीख लिए हैं तो building on that, you have to learn the core tools that are used for AI, जो libraries होती हैं, जो data processing tools होते हैं, and then once you have learned that आपको पूरी समझ आ गई है कि इस तरह, so then you have then कोई प्रोजेक्ट अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बिल्ड कर लें, बेशक छोटा हो, लेकिन कोई छोटा सा एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड एआई सिस्टम्स किस तरह चल रहे हैं। जो एपीआईज फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हो गए उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें, जो रिट्रीवल सिस्टम्स हैं उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। और जो आपको या एक कोई जो इफ यू वांट टू गेट इनटू प्रोफेशनल वर्ल्ड, मतलब एआई से रिलेटेड, तो कोई आपको कोर्स भी इसी तरह की पूरी आउटलाइन देगा। इट विल स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सिखा के उसी तरह का कोई प्रोजेक्ट बिल्डिंग होगी। सो Okay. या That's interesting. So you mentioned that one thing that someone can do to stand out is कोई certification कर ले, कोई course कर ले, and then also या do your own personal project. इसके अलावा, what do you think is something that fresh graduates or junior engineers should do so that they stand out during the hiring process? ओके। सो आई थिंक हर किसी को ना अपना अब मतलब पर्सनल प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो ऐसा बिल्ड करना चाहिए कि
ये हिस्सा बिल्ड करना चाहिए कि अपनी कोई गिटहब रिपोजिटरी बिल्ड की हो, क्या कहते हैं, जिसके अंदर दे कैन शोकेस के हमने ये किया हुआ है काम अपना, कोई सर्टिफिकेशंस के साथ कोई पर्सनल प्रोजेक्ट्स कोई अगर किए हुए हैं तो उनको मतलब बेसिकली अपना छोटा पोर्टफोलियो बना के शोकेस हमारी उसमें हार्ड स्किल टेक्निकल स्किल पे ज्यादा फोकस होता है, तो वी काइंड ऑफ लूज और सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी ग्रेट। अगर एक इंजीनियर की बहुत अच्छी हार्ड स्किल्स है बट ही कैन नॉट कम्युनिकेट दैट इन द इंटरव्यू, तो वो कहीं ना कहीं उस दे लैक क्या कहते हैं इन सेंस के उनका इंटरव्यू शायद उतना अच्छा ना हो जितना उस बंदे का हो जो जिसकी हु इज अ ग्रेट इंजीनियर विद ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स। सो आई वुड सजेस्ट के अपने जो भी प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इस तरह के ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स पे भी आप पब्लिश करें, दैट इज रियली गुड फॉर सीवी, गिटहब रिपोजिटरीज एंड देन फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज वो भी काफ़ी हेल्प करती हैं। अक्सर पहले पहले इंटरव्यूज में जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है उसको भी पता होता है कि यार ये एक फ्रेश ग्रेजुएट है, इसके पास कोई बहुत सालों का एक्सपीरियंस तो नहीं होगा। सो व्हाट दे मतलब वो इसी दे आर लुकिंग फॉर दिस थिंग कि अगला बंदा इस तरह कम्युनिकेट कर सके कि दे आर ओपन टू लर्न, क्या कहते हैं उनकी अगर उनको नहीं भी आती चीज तो उनका लर्निंग माइंडसेट है, तो वो इंटरव्यू में शो करने के लिए आई थिंक आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। I think that's a very good point that fresh graduates, especially, they don't have experience. They don't have a very large CV or portfolio, right? So, um, Yeah. your attitude and your, learning aptitude हाँ, is something that will, help the you. willing to learn. बिल्कुल, Yeah. बिल्कुल, बिल्कुल. Okay, okay. Job में आके, what do you think are some mistakes that people generally make in their initial jobs? वन ऑफ मतलब एक तो बिगेस्ट मिस्टेक आई थिंक यही है कि लाइक आई सेड बिफोर के बिकॉज यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी इन्वायरमेंट इस तरह का बना होता है कि आपको हेल्प मिल रही होती है, मतलब इट इज ईजियर टू आस्क फॉर हेल्प और रिसीव हेल्प, तो उस तरह का माहौल आई थिंक प्रोफेशनल के अंदर नहीं होता। और प्रोफेशनल लाइफ में आके थोड़े मतलब द थिंग्स यू आर वर्किंग ऑन वो डिफरेंट होती हैं बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी से, बिल्कुल. सो हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। तो आई थिंक जो एक बिगेस्ट मिस्टेक बच्चे करते हैं कि नॉट आस्क फॉर हेल्प, उस तरह नहीं मांगते जिस तरह उनको मतलब मांगनी चाहिए, एंड थोड़ा सा शाय भी होते हैं कि ये क्वेश्चन डम तो नहीं होगा, बट इट्स ओके टू आस्क डम क्वेश्चंस एज वेल, बिकॉज हर किसी को पता होता है, मतलब कोई आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होता कि कोई 10 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा इंजीनियर आके बैठ के सबको पता होता है कि यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट, तो वो आपसे उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बल्कि वो चाहते हैं कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछें। और आई थिंक एक ये चीज़ है। दूसरी आई वुड से कि आप मतलब हेल्प मांगने के साथ किसी की एडवाइस भी लें, मतलब अगर कोई आपको लग रहा है कि कोई अच्छा बंदा अच्छी गाइडेंस दे रहा है तो टेक पॉइंट्स और बी ओपन टू एडवाइसेस, और जो आपको गाइडेंस मिल रही है बी ओपन टू दैट। और अगर आप कोई मेंटर अच्छा आपको लगता है कि कोई मेंटर आप बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं, मतलब स्टार्टिंग से, और इससे नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है। आई थिंक नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर आप खुद यू कैन नॉट ऑलवेज फाइंड द राइट रोल्स फॉर योर सेल्फ, क्या कहते हैं हमेशा खुद ऑन योर ओन, क्या कहते हैं, कभी कभी आपके इतने रेलेवेंट रोल्स आपको नहीं पता होता दे एग्जिस्ट, लेकिन बिकॉज आपकी नेटवर्किंग होती है तो आपको राइट टाइम पे राइट बंदा रेफर कर देता है। सो अगर मतलब प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सोशल लाइफ भी, क्या कहते हैं, नेटवर्किंग भी करें साथ साथ। Yeah, definitely. I agree. I agree. Okay. So, another thing is कि जब आप स्टूडेंट होते हो तो यू इमेजिन्ड कि वर्क लाइफ किस तरह की होगी, राइट? सो क्या ऐसा या मिसकंसेप्शन है अबाउट व्हाट एक्चुअल वर्क लाइफ इज दैट यू हैड व्हाइल यू वर अ स्टूडेंट?
Okay, so when I entered the professional environment, तो मेरे लिए जो एक बहुत बड़ा change था वो ये था कि यूनिवर्सिटी में ना you are getting those assignments and everything you have to code yourself start से मतलब Mm-hmm. नए सिरे से आपको कोड करना होता है, सो आपको अंदर बाहर पता होता है कि आप क्या कर रहे हो. व्हेन आई एंटर्ड द प्रोफेशनल वर्ल्ड, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा वो था कि भाई ये इतना बड़ा कोड बेस है, इसके अंदर करना कहाँ पे जाके क्या करना है. Yeah. सो वो जो जाके कोड बेस अंडरस्टैंड करना और आपने कहाँ पे जाके काम करना, और तब तो इस तरह भी नहीं था ना कि एआई आईडीज थी जिसके अंदर एआई ऑलरेडी इंटीग्रेटेड था, तो कोड बेस अंडरस्टैंड करना, और देन यू रियलाइज दैट डिबगिंग स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है. आई डोंट थिंक मैंने यूनिवर्सिटी में कभी डिबगिंग सीखी थी कि Mm-hmm. क्योंकि मतलब उस तरह की डिबगिंग नहीं सीखी थी जो आप किसी और के कोड बेस में जाके कोड के अंदर करते हो. आप डिबग कर रहे होते हो तो अपने कोड के अंदर कर रहे होते हो, यू एग्जैक्टली कहीं पे एरर आए भी तो यू एग्जैक्टली नो कि ये किस वजह से कहाँ पे आया होगा. Mm. बट जो जाके एक नया किस ऑलरेडी सेटअप कोड बेस सेट करना, और वो वाली जो आई थिंक वो एक्सपेक्ट नहीं किया था प्रोफेशनल लाइफ में जाते हुए कि वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निकल स्किल्स भी रिक्वायर्ड होंगी. Yeah. एंड या That's interesting. And that's very true. Yeah. Okay. So, how do you stay relevant and up to date with the latest technologies? आई थिंक अब अपने काम से ना आउटसाइड ऑफ योर वर्क आपको अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखनी चाहिए, बिकॉज मतलब जो भी नई चीज़ आ रही है, चीज़ें जितनी जल्दी मतलब हमारे उसमें चेंज होती हैं हमारी फील्ड के अंदर, उतनी मेरे ख्याल में किसी और फील्ड में नहीं होती उस तरह चेंज. क्या कहते हैं, हर साल ही कोई ना कोई ट्रेंड्स बदल रहे होते हैं. पहले इट वाज डेटा साइंस, नाउ इट्स एआई, कल को कोई नई ऑगमेंटेड रियलिटी आ जाएगी. सो Yeah. एवरी डे इट्स अ न्यू थिंग. आई थिंक आउटसाइड ऑफ योर जॉब आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेशंस, कोई ना कोई अपनी पर्सनल प्रोजेक्ट्स या फिर पैशन प्रोजेक्ट्स कोई ना कोई साथ साथ होने चाहिए विच यू आर वर्किंग ऑन. अपना थोड़ा सा, एंड आई थिंक कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, जो भी काम कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंट रहो. सो तो आप मतलब अपडेटेड रहोगे, वट एवर इज हैपनिंग यू विल स्टे रेलिवेंट इफ यू आर कंसिस्टेंट. एंड आप अपने काम जो आप कर रहे हो जिससे इसके अलावा भी जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको सीखते रहो, तो अपनी लर्निंग में भी कंसिस्टेंट रहें. So, you worked in multiple places, right? So, job switch Yeah, yeah. करते वक्त, right? थोड़ा intimidating सा होता है. So, what pushes you or motivates you to switch a job? And during that process, what is your advice for someone कि किस तरह next job के लिए apply करें, या what should be the approach to finding a better job or a new job? Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. I think अगर तो if you are आप जॉब स्विच करो बेस्ड ऑन योर ओन डिसीजन, मतलब नॉट दैट आप ले ऑफ हो गए हो या फिर कोई इस तरह का मसला हुआ है कि आपके पास जॉब नहीं है, यू आर नॉट अनएम्प्लॉयड, तो माय सजेशन वुड बी कि आप अपनी करंट जॉब ना लीव करें. अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार मेरी लर्निंग इधर स्टेगनेंट हो गई है, या फिर मेरे लिए अब इधर कोई और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या फिर आपको मतलब इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो गया है, कुछ भी, आई डोंट थिंक सो आपको जॉब छोड़ देनी चाहिए. इफ़ यू आर एम्प्लॉयड, आई थिंक उसी टाइम के अंदर साथ साथ आप नई जॉब ढूंढे एंड कीप द जॉब, बिकॉज जॉब मार्केट बड़ी मुश्किल है. मतलब इतनी आसान नहीं है, क्या कहते हैं, कि आप एक जॉब छोड़ोगे तो आपको नेक्स्ट आपकी मर्जी का रोल ही मिल जाएगा. और इट्स नॉट कि आपकी बस टेक्निकल स्किल्स मतलब बहुत अच्छी हैं तो आपको आपका मर्जी का रोल मिल जाएगा. बहुत सारी और चीजें भी आ जाती हैं, मे बी द पे पैकेज यू आर आस्किंग फॉर, और मे बी कंपनी के अपने कोई उस वक्त वो हैं कि वो आपको नहीं मतलब हायर करते. इट्स जस्ट नॉट कि आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी हैं तो आप राइट फिट हो गए, काफ़ी और चीज़ें भी आ जाती हैं. सो
the job market is very harsh, so I would not suggest anyone if they are switching अपनी मर्जी से और they are employed तो उसी वक्त छोड़ दो. अगर जब आपको मिल जाती है जॉब, always तभी आप रेजिग्नेशन अपना पुट करें. तो ये मेरा सबसे बड़ी एडवाइस होगी. दूसरा, आई थिंक आप अगर जो अपनी नेक्स्ट जॉब में द थिंग्स यू वांट कि मुझे मतलब अगर आपको लग रहा है कि कोई स्किल्स आपकी यहाँ पे आप नहीं सीख पा रहे हो, और जिस आई स्विच फ्रॉम डेटा रोल्स टू बैक एंड रोल ऑल्सो, क्योंकि मैं डेटा के अंदर मुझे अपनी नहीं लग रही थी ग्रोथ इन द करंट कंपनी. सो और मेरा बहुत ज़्यादा डेटा का ही एक्सपीरियंस हो गया था. सो बैकएंड के अंदर मुझे उस तरह मतलब it was difficult कि मुझे backend के अंदर उस तरह रख लें because I was more towards data roles. So I think one of अगर आप जो अपनी job next target करना चाहते हो तो उसकी skills देखो कि किस तरह की skills required हैं and start mastering those. उसके अलावा क्या कहते हैं टेक्निकल राउंड्स होते हैं हमारे उसके अंदर. अब थोड़े डिफरेंट हो गए विद एआई, आई हैव हर्ड. बट टेक्निकल राउंड्स के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस. आपकी हैकर रैंक या लीड कोड के ऊपर मीडियम लेवल, हार्ड लेवल बेशक ना भी करो, क्या कहते हैं एक दो करो, बट मीडियम लेवल तक आपको करने चाहिए, क्या कहते हैं, क्योंकि टेक्निकल राउंड्स में उसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं. एंड देन अपने फंडामेंटल्स जो भी आपने जिस रोल में अप्लाई करने हैं उसके फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए. अगर मतलब बिकॉज मोस्टली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड वो नहीं, दे आर नॉट लुकिंग फॉर कि बहुत एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स आते हैं, फंडामेंटल्स आने चाहिए. सो वट एवर रोल यू आर लुकिंग फॉर उसका इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि मेरे कौन कौन से स्टेप्स हैं, मतलब कितने स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड हैव मतलब आपको उसके अंदर अपनी कोई ना कोई लर्निंग बिफोर हैंड करके रखनी चाहिए इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर जाने से पहले. और आई थिंक जब आप इंटरव्यूज देने लगते हो तो 2-3 इंटरव्यूज के बाद आप थोड़े फ्लो में भी आ जाते हो कि बिल्ड हो जाता है. या कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है. ओके. अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि यू हैड अ डेटा बैकग्राउंड एंड देन यू शिफ्टेड टू अ बैक एंड रोल, राइट? सो ये चेंज किस तरह आया? ये चेंज इस तरह आया था कि the company I was working for, they needed a person in their tech team. और जो उनका जो डेटा का डिपार्टमेंट था उसके अंदर मतलब उनके डेटा के अंदर देयर वर नॉट अ लॉट ऑफ डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ज़्यादातर चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी थी, रिपोर्टिंग टूल्स बन चुके थे, सब कुछ ऑटोमेट हो गया था. सो देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ मतलब बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा थी और वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं था. सो दे नीडेड समवन इन देयर टेक टीम. सो आई वाज आल्सो विलिंग टू मूव बिकॉज लाइक आई सेड कि मेरी ग्रोथ थोड़ी स्टैग्नेंट हो गई थी बिकॉज there was not a lot of workload over there, तो कोई इतनी learning भी नहीं थी. So then मैंने basically उनकी जो tech team में जिस position की requirement थी, I interviewed for that and like I said मैंने उसकी of course practice की. like एक edge मुझे ये था because I knew और प्रोडक्ट एंड मुझे पता था कि क्या टेक स्टैक है. सो मैंने उसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस कर ली थी. आई हैड द एक्सेस टू कोड बेस, सो वर्किंग इन द कंपनी, सो मुझे थोड़ा आइडिया था ओवरऑल कि क्या. सो दैट रियली हेल्प मी इन द इंटरव्यू. बट नॉनदलेस आपको स्विच करने में पहले ओवरऑल जिस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि I think it's also very important that something that you did was that pushing yourself out of your comfort zone, because आपकी current job में, ठीक है, for example workload कम हो गया तो your technically your life is easier, कि काम कम है but you're getting the same amount of pay, right? But you pushed yourself कि थोड़ी learning improve करने के लिए या अपने आप को professionally grow करने के लिए, to step out of your comfort zone and step into something else, right? So I think that's also something that's very important and very interesting. Yeah, and I think that this is also one mistake that early career में बंदा करता है because आपको उस वक्त समझ नहीं आती कि कितना ज़रूरी है कि आप अपने आप को इवॉल्व करते रहो बिकॉज कंप्यूटर साइंस की दुनिया जिस तरह चेंज होती है, आप
irrelevant हो जाओगे. So that is something you need to do. और शुरू में like you think you have landed a job, you will have this job forever. तो आप उस तरह नहीं उस पे उस पे focus करते. But yeah, this is also really important कि आप Hmm. अपने अपने आप को challenge करते रहो, अपने आप को evolve करते रहो, so you are always relevant. Exactly, exactly. Now I want to move over to a rapid fire round. Are you ready, Shaman? Yeah. Okay, great. Networking or technical skills? I think technical skills first, and then networking will amplify it. But technical skills हो तो फिर networking करो. Nice. Internships or personal projects? um, I think internships, personal projects, because आपको university भी का कुछ हद तक आपके final year projects and personal projects build हो जाते हैं. Internship से आपका career और professional world की exposure अच्छी मिलती है. AI replacing jobs or creating new ones? Uh, this is difficult. um, I think AI is replacing jobs currently, but it will create new also, which will be of different nature. Okay. Good engineering or great communicator? Good engineer or great communicator? Who grows faster? Um, a good engineer who is a great communicator. I think a good engineer. uh, okay. AI tools, productivity boost or dependency risk? Like I said, पहले भी I said कि अगर तो आपको अपने fundamentals पता है, आपको core concept पता है, then it's a productivity boost. Otherwise, you are just outsourcing. मतलब आप अपने आप को dependent हो रहे हो. Hmm. Yeah, then it's dependency risk. Debugging or writing new code, which takes more skill? Debugging. Tutorials or trial and error? Like you will start with tutorial, but then on trial and error पे आप आ ही जाओगे फिर. Huh. But tutorials to start. Okay. Master one tool or understand many? Understand many. I think with AI assistants, you can master them also. Nice. Portfolio or CV, which gets noticed first? uh, portfolio. CV पे अगर आपकी skills हैं भी but you can't justify them, then it's of no use. So I think you will put आप वही put करोगे on your CV जिसका portfolio आपका build हुआ हुआ है already. Deadline pressure, helpful or stressful? If it's balanced, then it's helpful. Otherwise, it's stressful. Curiosity or discipline? uh, Discipline. Hmm. Yeah. What skill will matter more than coding in the future? Problem solving. I think yeah. Problem solving. I think it's jaldi replaced. One skill engineers must learn because of AI. I think AI को किस तरह मतलब how to make better use of AI, like prompt engineering सीखें or integrating AI into systems. Yeah. One mistake students should avoid. I think every student should have their passion project they are building और उसके ऊपर पहले से काम शुरू कर लें अपने real world में professional world में जाने से पहले. Nice. Something you wish you learned earlier. Last one. Um, uh, I think, like I said, finding the right guidance, or also I think instead of chasing, I think शुरू में आपको सर नीचे रख के काम ज्यादा करना चाहिए जो मैंने उस तरह नहीं किया. Instead of like मैंने I explored more than focusing on my अपनी learning के ऊपर ज्यादा focus करना चाहिए था. Okay, okay. So thank you, Shaman. That was a wonderful rapid fire. Just to conclude, what is your, if you have some final advice that you'd want to give fresh grads or people who are starting out their career, anything that you'd like to say to them?
आई थिंक शुरू के अंदर ना एक तो लाइक आई सेड डोंट शाई अवे, क्या कहते हैं, अगर आपको कहीं लग रहा है कि दैट यू नीड हेल्प, आस्क इट फ्रॉम एनीवन यू सी कि आपको लगता है थोड़ा सा भी reachable लगता है, you should ask for help. One thing is that. The other thing is something which I regret also, के in the beginning don't focus on के आपको कहाँ पे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, कहाँ पे आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिल रहा है। अपना सर नीचे करके अपना काम सीखना चाहिए। आप रिस्क, अगर उसके अंदर कुछ चैलेंजिंग, कुछ रिस्की काम भी है तो वो ज़रूर करें। और हम्म। आस-पास आस-पास दूसरों की जर्नी ना देखें कि ओह! वो तो यार इतना कमा रहा है, वो तो उधर बड़ी कंपनी में, ही लैंडेड दिस जॉब, ही लैंड, मतलब इस तरह की चीज़ें अपना फ़ोकस करके अपना सीखें, क्या कहते हैं, तो ग्रोथ खुद ही आपके पास आ जाएगी। Very nice. Thank you so much, Shaman, for your time. थैंक यू।